Sangam Premier League. And talking about the second semi-finals, it's almost like both the teams are matching very much each other in all the aspects. So we are talking about a team from Sawantwadi, that is Maharashtra. We are talking about the other team that is from Karnataka, coming in the close by regions. Both are neighbors, and they do play against each other a lot many times. Not in Goa, but they have definitely faced against each other many a times in the past. So we'll certainly know about, yes, umpires are giving the signal there to get set, go here for the second semi-finals. We are all set. And one thing, one aspect of clear-cut strikers from Karnataka, they've got a very formidable bowling lineup. And they will certainly, after losing the toss, they'll be delighted here. I think they will be happy to bowl first, and they are hoping that it just goes just like in the first semi-finals. Here we go for the first ball of the second semi-finals. Sagar Bhandari, the batter, just drives the ball. Omkar Keni, and pushes the ball on the offside, starts off with a single. And after looking at the first semi-final and the result and what has happened to Shivam Computers team of Rajasthan, I think the team of Raju Tigers, Arunda Sawantwadi, must have also seen that this wicket is not where you just come and play the shots. You have to spend a little bit of time on this wicket. The ball is just holding a bit on the surface and coming a little bit late. And that's why many of the catches have been scooped up very high, and it has not gone the distance. It has gone straight in the hands of the fielders. All these aspects need to be calculated very well by the batters, trying to just play the ball in the backward point region as a square cut. But Sagar Bhandari, I have seen him many a times. He comes in Goa, especially in light ball cricket as well. He is exceptional in light ball cricket, and now trying to just transpire all his energy and all his focus in the Sangam Premier League semi-finals for clear-cut strikers Karnataka. So looking to drive. They are just trying to assess the situation. They are trying to assess the pitch condition. For all the viewers, I just need to update that it has been raining in Goa today from around 7 o'clock. And it was raining here as well in this SSG ground at Sangam. So I think there will be a little bit of dampness on the surface. Also, lot of dampness on the outfield. That's why the ball is not traveling on the outfield quickly towards for those boundaries. And that is an aspect that is going to be looked after by the batters. So I feel, personally, I reckon here that running between the wickets and converting ones into two is going to be important to get towards that 50-55 run mark. It's not going to be only big shots that are going to create impact. I think smart batting, clever batting is the flavor of the night. Trying to just drive the ball, looking for a single. Yeah, he knew that he was coming at the danger end. Well bowled here. He saw the batter has shuffled, and there is a man in the deep covers. So when you are bowling the fuller length outside the line, the one shot that you can play is the cover drive or maybe the off drive, and he has pegged that field. So very smart and sensible bowling here from Sagar Bhandari. He knows exactly where I place the fielders, and he's bowling as per plan. So far, so good. Wonderful start here from Sagar. This is in the air. This should be a chance. No, just away from the fielder. So you see that fielder. He has placed a man in the deep extra cover region. He's trying to bowl a full. So the batter has to go for that drive, the lofted drive of the extra cover drive, and it's got a protection. Fine piece of bowling. Very good artistic bowling here from Sagar Bhandari. Marks the end of over number 1. Raju Tigers are on the Sawantwadi on 5 without loss. नक्कीच सर, नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अवघ्या 5 धावा, गडी बाद झालेला नाही आहे. खेळाडूंसाठी भरघोस पारितोषिक आहेत. अगदी कॅश प्राईज आपल्याला भरघोस पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर आकर्षक चषक. तर नक्कीच आमच्या भाग्यवान प्रेक्षकांसाठी डोनेशन कुपन्स आहेत. तुम्ही 200 रुपयांमध्ये डोनेशन कुपन तुम्ही खरेदी करू शकता, आणि या डोनेशन कुपनचं प्रथम पारितोषिक आहे 2 लाख, द्वितीय पारितोषिक आहे 1 लाख, थर्ड प्राइज आहे 75,000, फोर्थ प्राइज आहे 50,000, आणि 5व्या क्रमांकासाठी 25,000. त्याचबरोबर हाऊजी त्याचंही तिकीट उपलब्ध आहे. तर नक्कीच तुम्ही लवकरात लवकर तोरा करा. डोनेशन कुपन्स आणि हाऊजी
त्याचा तुम्ही आस्वाद घेऊ शकता आणि जाता जाता तुमच्या हातामध्ये कॅश प्राइज हे हाऊजी किंवा डोनेशन कुपनचं नक्कीच पाहायला मिळेल. जयनाथ दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिड विकेटला मस्त सुंदर फटका म्हणावा लागेल. अगदी पूल केलाय या चेंडूवरती आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सावली क्रिएशन चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका आणि मोठ्या फटक्याने धावफलक बदलताना दिसतोय तो राजू टायगर सावंतवाडी आरोंदा क्रिकेट संघाचा. There's a fine piece of cricket there. Wonderful shot. And gets away the first boundary of this innings for Raju Tigers Aronda Sawantwadi coming from the bat of Omkar Kenny. So Jayant has come on to bowl the second over for the side and the first over for himself. So we are still into the power play overs and trying to just figure out the field here for Jayant. He has also kept a similar sort of field. There is a deep extra cover. And there is a man on the leg side as well. Looking to swipe. This ball was, I think, a premeditated shot. He intended to swipe the ball, and the length was ragged back here by the bowler, and the line was also wideish one. So you got to fetch it from way outside the line of option. Pre-thought sometimes entangles you. Looking for the switch hit there, and the bowler stopping in his bowling mark. Very clever on that occasion. Sometimes these are the small moments. Bowler keeping an eye on the ball, on the batter. That's a very good thing to do in tennis ball cricket. That is what most of the bowlers should be looking, the movement of the batters. Looking to, well stop, good stop. Driving firmly, but the foot cupping into the help. Very nicely done there, and stopping that single. I don't think so it will be going for a boundary over there, but well bowled. They are bowling the variation, they are bowling the full length. And when you are bowling the full length on the wicket that is stopping a bit, that is exactly what entices the batters to go for the big one. And when you're going for the big one, the ball stops and then you scoop the ball straight up in the air. These are the small things, but technical aspects need to be covered as a part of Combox. Up and over. Wonderful shot. The fielder giving the chase and just dropped the catch. I thought it's going to clear him. I think that's Sagar Bandari at the mid-off region looking for the second run, sensing an opportunity and scampering for that extra run. Very well taken, 3 runs here. Well, the bowler is telling that it was maybe a couple of runs at the most, not the third one. He's telling that there's a replay. Played it at a wide long off. Good chase. He reached there, Sagar. And at his standards, he should have taken it. He should be disappointed by that. And that extra bounce of the tennis ball just takes it over his head. He took a leap there. He took a leap, but the bounce was a little bit more than his leap. 12 runs at the moment. This time definitely a wide. Trying to just bowl a wideish line. The batter trying to just shuffle across. And this is nowadays a ploy in modern cricket. Coming across, walk across the stumps and trying to bludgeon the ball on the leg side. Takes a swipe. Well bowled. Lovely bowling. Great deception. Bowl a slower leg cutter. This is what you want the bowlers to be doing. You cannot be predictable in a 6 overs game. You just need to assess the conditions and bowl as per the wicket. Another one. The bat drops from his hands and he plays the ball towards the short mid-wicket region. You can see maybe the grip is a little bit wet over there. He's got his gloves on, but still there is some wetness. Yeah, he's just wiping the sweat, whatever there. It's very hot and humid, but after the rains, I think it has eased down. The temperatures have gone down. 2 overs done. Is 14 without loss. Raju Tigers are on the Sawantwadi.
नक्कीच सर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. अगदी समोइच्छित धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळतंय. कुठेही जोखीम पत्करली जात नाही. रणनीती आपल्याला पाहायला मिळतंय, की 2-3 पहिल्या 2-3 षटकांमध्ये भागीदारी करायची आणि शेवटच्या षटकांमध्ये आक्रमण करायचं हा कुठेतरी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. राजू टायगर्स, अरुणदा सावंतवाडी क्रिकेट संघाचा. पहिलं षटक अगदी 5 धावांचं निघालं. दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळतायत. म्हणजे 14 धावा धावफलकावरती आणि मी म्हणेन अगदी 6 षटकांचा सामना आहे. 50-55च्या आसपास नेली धावसंख्या तर एक नक्की फायटिंग टोटल आपल्याला पाहायला मिळेल राजू टायकर अरुणदा सावंतवाडी क्रिकेट टीमचा. Yes, I think you are right, Pradeep. There, 50 to 55 is the assessment, and that's why they are not going for the hard shots. They are trying to just preserve the wickets and trying to figure out exactly the conditions, spend some time on the wicket, and maybe target some big bowlers. So they've come well planned. Sumit Dongre and Omkar Kening. They just got one boundary. They are on 14 so far, and not losing wicket and going further with the partnership, going deep into the partnership is, I think, the important criteria. They need to just think about getting somewhere around maybe 25 to 30 runs in three overs or 3.2 overs, and from that point onwards, if they have got wickets in hand, they can launch a skating attack. That's good thinking, good plan, but they have to execute whatever their thinking is there on the 22 yards. Another one trying for the big hoik. The line has been really good. They have not bowled a single ball that has targeted the stumps. They are not looking for the wickets. They are not looking for those LBWs or clean bowled dismissals here at this moment. They are trying to bowl a wide-ish line and frustrate the batter here with that wonderful tight-ish line wide outside the line of off stump. नक्कीच सर फुलर लाईन चेंडू होता अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झालाय 38 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑफ आपण पाहतोय समोर खेळण्याचा प्रयत्न झाला असता तर धावा नक्कीच पाहायला मिळाल्या असत्या. It's time driven down the ground. The fielding restrictions have gone and looking for the second run and very well fielded. Good recovery. There was a little blip in the field, but the ball was loitering around the fielder there, and he just picks it up and throws it back to the bowler. So good recovery by the fielder in spite of a small fumble. Now the fielders with the left and right hand combination are swapping their positions at the long off and the mid off region. Manjunath, the best bowler from KSPL. It's not easy to be best bowler in KSPL. They've got a lot of talent there. They've got a lot of potential and high performance players. So we can speak about his talent. Lovely. Drag the length back there. Little bit problem for the batter as well as for the keeper. Well, this is very smart. He was bowling the full length throughout and suddenly grabbed the length back. This is a very smart piece of bowling because the batter is thinking in the mind that the bowler is going to bowl full. He was ready for the sweep shot, but that's very intelligent. That's why he has been adjudged as the best bowler in KSPL. 16 runs at the moment. Sixteen without loss in 2.3. This time looking for a wide there and taking the review. Another one there where the ball has shoot up high from that position, and that's why you can see that the batter at the moment just farming there, gardening there with his bat, extra bounce. Well, umpire has referred it to the third umpire. It's a fair delivery. It's an easy call for the third umpire. It's a fair call. They just want to maybe take a time there. You can see that replay over there on tennis cricket. So much of shuffle there. It just gone close to the bat. It might have gone back behind the line, but I think way after it has gone in the hands of the keeper, it looks as if, but when it goes past the bat, it was very close to the bat. So very well done here by the officiating umpire Sujit as well as the third umpire. Good decision in the end. Hi, there's a man down there. He's charging in and he takes a simple catch. Another one. This is the first wicket that has gone down. I think they have been frustrated here by some tidy bowling.
trying to break free, trying to go in the clutches and trying to go downtown has perished. And there's the first wicket here going down through courtesy of wonderful disciplined bowling attack. नक्कीच सर रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो अगदी लॉंगॉनला खेळण्याचा प्रयत्न सर मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये होता मिड ऑफच्या डोकेवरनं खेळला असतं तर नक्कीच धावा पाहायला मिळाल्या असत्या मात्र तो खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं त्याला ऑन साईडला आणि चांगला झेल पकडलाय क्लिअर क्रेड कर्नाटक क्रिकेटच्या क्षेत्ररक्षकाने आणि 16 धावा एक गडी बाद आपल्याला पाहायला मिळतोय धावफलक तेवढा चांगला वाटत नाहीये मात्र आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल कारण पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहिला त्याही डावामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये धावा निघाल्या नव्हता तर इथं मात्र जे फलंदाज आहेत त्यांना आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. That's absolutely right. And it's not easy to score shots here on this wicket. Whenever the batter have tried to go for the big launch or a skating attack on the bowlers, the timing has been missed. The timing is an important aspect. And we have seen the distance which it was falling short of the boundary rope was almost 10 meters. That is indication that in spite of giving the full power, the ball is not traveling. You have to connect it really well and sweetly time the ball. Another exceptional over from Manjunath. 3 overs done and Raju Tigers are on the Sawantwadi on 16 for 1. 3 षटक म्हणजे 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय म्हणजे अजूनही निम्मा षटकांचा खेळ बाकी असेल फलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय ओमी केनी त्याचबरोबर आकाश दोन्ही फलंदाजांना मैदानावरती नजरा जमवाव्या लागतील कारण अजून 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे इथून मुसंडी मारावी लागेल आतापर्यंत 3 षटकांचा विचार केला तर चांगली प्रभावी गोलंदाजी पाहायला मिळाली क्लिअर क्रेड स्ट्रायकर कर्नाटक क्रिकेट टीमची जी त्यांची ताकद आहे गोलंदाजी ही त्यांची ताकद आहे आणि ती त्यांनी ताकद दाखवली आहे पहिल्या 3 षटकांमध्ये. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळेल जयंत गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि जयंत या अगोदरचं षटक हे जयंतने चांगलं हाताळलं होतं इथून कशा प्रकारे फलंदाजी होईल राजू टायगर अरोंदा क्रिकेट संघ अगदी नाणेफेक जिंकल्यानंतर धाडसी निर्णय घेताना हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच हा निर्णय योग्य ठरेल की अयोग्य येणारी वेळ ठरवून देईल ती या 2 टीम्स मध्ये. There's a good shot. What a high talented shot has been fielded. No, just rolls over. Rolls over for 4 runs. It's almost like a slap on the extra cover region. Extra bounce, still controlling it very nicely. Very difficult shot to execute there. It's Omkar Kenny. And Omkar Kenny, for all the viewers and listeners who are following Sangam Premier League, Omkar Kenny was the best batter and he played for Rupesh 11 Betul in the Sangam Premier League 2020 to 23 edition. So he has played in the past. He knows about this tournament. He knows about this wicket and he knows about its conditions. Although it has changed a little bit after the rains. Another one which was slightly short of length, trying to take a swipe at it. But I think this shot, when you're looking at the swipe, is somewhere around the good length, maybe 2 meters away from the batter. You are getting that wonderful lift over that square leg region. But when it is ranked to almost 4 meters in tennis ball, it has an extra bounce. So it's very difficult to control that swipe on the leg side. ओमकार केनी सर बेळगावमध्ये खेळून आला आणि आत्ताच बेळगावमध्ये त्याला मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक मिळाली तर नक्कीच आत्मविश्वास या खेळाडूकडे पाहायला मिळतोय 10 चेंडूंचा सामना केलाय 15 धावांवरती खेळतोय तर आकाश अजूनही त्याला खातं उघडणं बाकी असेल 21 धावा एक गडी बाद. Oh, that's over the top, but there's a fielder, and so it's just going to be 1 run. But one thing about Sangam Premier League, they've got a wonderful trophy this edition. And if tennis cricket can show that wonderful trophy, we had shown it during the toss. So if Gaurav can help it, a different sort of mold, a different sort of trophy that has been placed here. Looks very nice, looks very glittering, and it's a golden touch there. So any champions would like to lift it. So beautiful. Swept, and well fielded, very well fielded. That taking the leap there at the right time, keeping the ball back in play, saving 2 runs, a precious 2 runs in the semi-final too. And you can see the whistles as well from all the people of Sangam and Kurcharam. They have come here to
watch this semi-final 1-2 and the finals later. The people are also excited. They know that big stars have come here to showcase their talent, showcase their skills. Trying to just squeeze the ball out, but just at the most can get a single. Jayant has come on with his second over. He bowled the first over. So far, he's wicketless. He has conceded 18 runs. But if he can keep it under to 20 in 2 overs with around 10 runs per over, I think he will have done a good job, because 1 over he has bowled in the power play. So that is also a consideration, and that is one aspect that you got to see with the fielding restrictions on. Trying to just go for the inside out shot, way away from the line, nowhere close to the line there. Exceptional bowling, good one. A boundary definitely has been scored in that over, and it's going to be 9 runs coming off that over. Review has been taken. So let's see. Betting side has asked for the review here for that wide. They feel, Gaurav, thank you very much. Tenniscricket.in, that is the beautiful trophy. It's a different shape. Yeah, isn't it beautiful? Glittering, glamorous, golden. The gold is very costly, and Sangam Premier League was also not so easy. It is also very precious one. Fair delivery. So fair delivery it is. 4 overs. We're done with 4 overs. 25 for 1. And still, the focus is on the trophy. Beautiful. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पावशतक फलकावर लागलाय. 25 धावा, 1 गडी बाद. फलंदाजी अगदी खोलवर आहे राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी संघाची. मात्र खेळपट्टी पाहिली तर नक्की तो चेंडू बॅटवर नेट येताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तर नक्कीच फलंदाजांचं तंत्र कौशल्य इथं पणाला लागेल, कारण फलंदाजी करणं तेवढं सोपं नसेल. कारण अगोदर पाहिलं तर पाऊस झाला होता. 25 रन, 1 विकेट. And both the reviews have been lost, and both the reviews unsuccessful. So now they can't take the reviews here. And thank you very much, Tennis Cricket, for covering us. Hi. Cameramen have done a great job for the last 4 nights, and today as well, the 5th night. So they have some sleepless nights, and it's also important to take their names. Great work, man. Great work, my friend, and Gaurav as well, taking the charge and leading from the front and doing a good job. Thank you for covering the commentators as well for a small moment. Finally, people listen to our voice, but it's great to see yourself on the screens for some point of time. Yes, Chamim, welcome. The man behind GSPL, Goan Street Premier League, which will be held on 15th, 16th, 17th of May. Auctions will be on 30th of April. So stay tuned for that tournament as well in Goa, in Fatoda. Slightly a wide-ish line. And now there is no review left. You have taken the reviews there for a needless call. When the ball was inside, you could have taken for a better option. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय पुरुषोत्तम गोलंदाजीची कमान सांभाळताना दिसतोय. मोठ्या फटक्यांपासून रोखून धरलाय कर्नाटक क्रिकेट टीमने आरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट टीमला. राईट आर्म राऊंड विकेट. लोअर फुल टच चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जातोय स्वीपर कव्हरला. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली आहे आणि एकेरी धावसंख्येने धाव फलक बदललाय. 26 धावा, 1 गडी बाद. अजूनही मोठ्या फटक्यांच्या प्रतीक्षेत राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. Well, the only difference between the first innings of the first semi-final and the second semi-finals is there are a lot of wickets left. Whereas if you do Shivam Computers, they had lost 6 to 7 wickets. The score was almost similar. They were just going around 6 runs per over, but they had lost plenty of wickets. Now, I think Raju Tigers Aronda will be hoping for the last 10 balls. If they get around 20 runs and get somewhere around 46 to 50, it might be a great finish. And they'll be hoping for that. But bowling has been really impeccable. They'll be a fine piece of bowling, great artistic skills. Whipped away on the leg side, looking to push for a couple of runs, putting pressure on the fielders. He has done a good job. He comes storming there, cutting down the angles. Very important when you're fielding at a long on the mid-wicket region. You need to cut down on the angles. Come quickly towards the ball rather than turn around on the ball. That is where you can stop those couples. That's where it was on display. So they are just dealing in singles. They need to break this chain.
They are farming the strike at the moment, farming the strike with those singles, but that the big shots are unseen in the semi-finals. In the air, there's a fielder down, straight into his throat. He doesn't commit a mistake. It was flat. It was traveling quickly to him, and Purushottam strikes, and it's Omkar Kenny who departs. जेव्हीए गडी बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. लोअर फुलटॉस चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. मिड ऑफ अर्थात मिड ऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. दुसरा गडी बाद होतोय. अगदी मोठा मासा गळायला लागलाय ओमी केनी याच्या स्वरूपात. राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट संघाचा दुसरा गडी बाद झालाय या डावामध्ये. 27 धावा, 2 गडी बाद. 27 for 2 in 4.4 overs. And second wicket gone down. Here, this innings is to be seen, and look at the innings there. They are trying to preserve wickets right from the start, as we discussed, but they have not got the partnership. They have got small partnership, but those big shots are still incoming in spite of spending time on the wickets. So that's why shot making has been very difficult, especially those big ones. Those big ones are very difficult. We have not seen the boundaries. We have not seen the sixes. अंपायर मातशें मॅच थांबय. आमचे मुखेल सोयरे मुखेल अतिथी पाविल्ले आसा. गोंय राज्य चालू दवरू सर, चालू दवर खंय. सरान सांगला चालू दवर, तर मॅच कंटिन्यू करूया. थँक्यू सर. तर ऑर्गनायझर सांगपाक सोदताले की आमचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त सुभाष फळदेसाय सर हांगा पाविल्ले आसा, गोंय राज्याचे मानाधीक मंत्री. तरी पूण मंत्र्यान थंयच्यातल्यान सिग्नल केले क्रिकेट बंद जावपाक जायना, क्रिकेट चालू दवरा, आपूण सायडीच्यान येता. देव बरें करूं सर. क्रिकेटीक मुखार दवरपी आमचे लाडके आमदार सांगेचे. And that should be a wide. And that's a great gesture. We need people like Subhash Faldesai sir who keeps the sportsmen at a very high level, and also not only about cricket but also about different sports that are being taken in Sangam region. And that is one gesture that is going to definitely make rounds. He had waved off saying that I will come off outside the field, let the match continue. That's a great thing. Very few people, very few politicians do such wonderful gestures, but Subhash sir is one amongst the many. So that was a Yorker delivery. People have come from Karnataka, they have come from Maharashtra, they have come from Delhi. You can see the chief guest for today's function, Subhash Faldesai sir, on the screens, Honorable Minister for DDW, Social Welfare. And we welcome him with a big round of applause to Subhash Faldesai sir, who has given a lion-hearted share in this Sangam Premier League. Trying to take a swipe. Wonderful. What a leg cutter ball. Pitched in line just around a good length area and turning sharply away. Exceptional bowling here from clear-cut Karnataka. Clear-cut strikers have been making big impact. 5 overs have been bowled so far, and the score is just 29 for 2. तशेंच गोंय राज्यान जेन्ना टुर्नामेंट जाताले 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं तेन्ना सगळे टुर्नामेंट ओपन जाताले, जेन्ना तुका जाय तशी टीम घेवन तुका येवपाक मेळटाले. पण आज IPL जाल्ल्या कारणान फ्रँचायसी बेस्ड टुर्नामेंट चड जाता, पंचायत म्युनिसिपालिटी टुर्नामेंट चड जातात, तालुका लेवल टुर्नामेंट घडटात. पूण ओपन टुर्नामेंट गोंय राज्यान येदो मोठो थराचो टुर्नामेंट फक्त एकूच उरला, तो सांगेम प्रिमियर लीग. आनी गोंय राज्यांत खंयचोच ओपन टुर्नामेंट अजून जितो जैतिवंत जो आसा तो उरूना. आनी ताजो श्रेय बी दिसता म्हाका ऑर्गनायझर्साक वचपाक जाय. तशेंच सांगेचे धडाडीचे आमदार भोवमाने सुभाष फळदेसाय सरांकय वचपाक जाय, कारण तांणी प्रत्येक वेळार पावला कणकणी ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य केल्लें आसा, मदत केल्ली आसा. आनी जितले बाकी कडेन सगळे टुर्नामेंट बंद पडले, पूण सांगे वाठारांत एकच पर्यंत अजून पर्यंत टुर्नामेंट जो गोंयचें नांव गोंयची शान राखून दवरिल्ली आसा.
trying to sweep the ball. आणि एक गजाल की जेन्ना कोरोनाचो काळ आयिल्लो, थरारक काळ आयिल्लो, खतरनाक काळ आयिल्लो, त्या टायमार सुद्दां बाकीचे सगळे टुर्नामेंट बंद पडले, पूण सांगेम प्रिमियर लीग एकच टुर्नामेंट आशिल्लो जो चालू आशिल्लो. ते खूब कितें दर्शून वता, ते खूब कितें सांगून वता. सांगेचे सगळे लोकांचे जिद्द जी आसा, चिकाटी जी आसा आनी परिश्रम जे आसा ते सांगून वता. आनी क्रिकेटी बद्दल प्रेमूय ते सांगून वता की ज्या खतरनाक काळान लोक भायर सरपाक सोदनाशिल्ले, थंय हांगा लोकांनी सांगेच्या सगळ्या ऑर्गनायझर्सांनी हांगा टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. तो एक मोठी गजाल आसा. Another one, the ball is keeping low. The pitch is absolutely conducive for the bowlers. And I sometimes feel here they have seen and assessed the conditions in the first innings and the first semi-finals. They have still opted for batting. So certainly it just troubles the mind. 5.3 over, just 29 on the board. We are not. People have come here to see big shots, but sometimes cricket also should focus and channelize on the bowlers. They are doing the hard work. They have been, another one straight up. That's in the hands. Is bowling from round the wicket. The batter is struggling, and that should be a run out, sacrificing himself for his partner. We have not seen too many sixes. We have not seen too many boundaries. Kafil come on to bowl 3 dot balls and a run out. Well, it's all about bowling, Pradeep. It's all about bowling. 29 for 3. In fact, 4 dot balls. That was just been updated there. Can we see a maiden over here, the last one? नक्कीच सर, पहिला सेमीफायनल सामना ज्या पद्धतीने आपण पाहिला, शिवम कॉम्प्युटर राजस्थान टीमने टॉस जिंकून फलंदाजी स्वीकारली. याही सामन्यामध्ये तेच आपल्याला पाहायला मिळालं. टॉस जिंकला होता राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट टीमने, मात्र ती फलंदाजी पाहायला मिळाली नाही. नैसर्गिक खेळ पाहायला मिळाले नाही. दुसऱ्या बाजूने क्लिअर कट स्ट्रायकर कर्नाटक संघाच्या गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. जी संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं केलं आणि आतापर्यंत रोखून धरलाय. अवघ्या 29 धावा, 3 गडी बाद. So once again, we want to update that whoever has not just followed the first semi-finals, it was just 30 that runs that were posted by Shivam Computers Rajasthan, and it was chased easily. And now also we are looking at the same projections here. 29. Nicely driven there. Is he getting a boundary? No, fielder converging, slight fumble. Ball deviates a little bit, but very close, and just gets a couple of runs there. So wonderful drive there. But the bowling has been so professional. They have assessed the conditions and bowled those variations, stick to their plans. The wicket is helping. And that's another one that kept low. It's got a sidearm action. And why need to throw on the batter? You need to throw straight away to the bowler. Slight mistake there and a single. So it's going to be single and a run out. But in the end, if you see and sum up the entire 6 overs, well, they won't be happy. They won't be happy here. Raju Tigers Haronda Sawantwadi, they won the toss and opting to bat first. And might not have been the best decision, but we never know. Cricket, as the game of great uncertainties, has seen many miracles, many magics being happen, defended low totals. Can we see somewhat like that in the second semi-finals? But I think if you talk about the bowling side, they are exceptional. They were outstanding. They were brilliant. Call what? But they will fancy themselves to see into the finals. नक्कीच बॅटिंगचं स्कोर कार्ड आपण पाहतोय. आघाडीला सुमित डोंगडे आला होता, त्याचबरोबर ओमी केनी. या 2 फलंदाजांमध्ये थोडाफार प्रतिकार पाहायला मिळाला. ओमी केनीने 19 धावा जमवल्या, 15 चेंडूंचा सामना केला. सुमित डोंगडे ज्याने 9 चेंडूंवरती 4 धावा. त्यानंतर आकाश ज्याने 7 चेंडूंवरती 4 धावा. नाबाद आपल्याला पाहायला मिळतोय. संस्कार त्याने 5 चेंडूंवरती एकेरी धाव आणि जीवित जिथं मात्र 0 या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी आपण पाहतोय सागर भंडारी ज्याने 1 षटक हाताळलं, 5 धावा दिल्या. जयंत ज्याने 2 षटकं हाताळली, 18 धावा दिला, सफलता मिळाली नाही. मंजुनाथने 1 षटक हाताळलं, 1 धाव दिली, 1 गडी बाद केलाय. पुरुषोत्तम ज्याने एका षटकामध्ये 4 धावा दिल्या, 1 गडी बाद केलाय. आणि काफिल, काय गोलंदाजी म्हणावी लागेल. शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. अवघ्या 32 धावा म्हणजे 33 धावांची आवश्यकता असेल. येणारे 36 चेंडू बनवायचे आहेत 33 धावा.
आणि नेहमी मी म्हणतो कभी कभी छोटा टार्गेट बडा बनता है और बडा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. या सामन्याकडे कशा प्रकारे गोलंदाजी होईल, राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट टीमकडनं धावांचा पाठलाग होईल की धावांचा बचाव केला जाईल, येणारी वेळ ठरवून देईल या दोन टीम्समध्ये. डेफिनेटली आणि ज्या तरेन हांगा दोनी सेमी फायनल्यो कारण लक्षात दवरपाक जाय सगळ्यांनी की होदोळ पावस पडिल्लो आणि पावस जेन्ना पडटा तेन्ना मातशी ओलसाण जी आसा ती पिचीचेर उरता, ग्रावंडा भायर उरता. बॉल जो पयलीं फास्ट ट्रॅवल जातालो तो ह्या थोडेसे ओलसाणी खातीर बॉल भायर वचना आणि स्लो वता, बॉल सकयल उरता, मदीं मदीं वयर सरता. तो ह्या ग्रावंड कंडिशन्स जेन्ना पावस पडटा क्रिकेटीन खूब फरक पडटा आणि त्या खातीर म्हाका दिसता लो स्कोर जे आसा हांगा दोनी सेमी फायनलीक आमकां पळयले आसा. पयल्या सेमी फायनलीक 30 रन, दुसऱ्या सेमी फायनलीक 31 रन. तर 32 रनाची गरज आसा आणि 32 रन जर 33 रन जर 33 रन पळयतले जाल्यार तितलो व्हडलो टोटल ना आणि 33 रन जर स्मार्टली खेळ्ळे, कॅल्क्युलेटीव खेळ्ळे जाल्यार डेफिनेटली क्लियर क्रेड स्ट्रायकर्स कर्नाटका बाजी मारपाक शकता. पण एक दोन बऱ्यो ओव्हरी पडल्यो जेन्ना पळयत 1 रन 2 रन किंवा 3 रन येतात जाल्यार डेफिनेटली प्रेशर जो आसा तो वाडपाक शकता. तो क्रिकेटीन कितें घडपाक शकता, 2-3 बऱ्यो ओव्हऱ्यो जाल्यार परत एकदा राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी हे परत एकदा मॅचिंग येवपाक शकता. खूब जाण हांगा सांगे वाठारांतले तशेंच कुडचडे केपेंच्यान हांगा लोक आयिल्ले आसात मॅची पळोवपाक दोनी सेमी फायनल. कारण अख्ख्या इंडियेच्यान सुपरस्टार्स जे आसात, बरे बरे प्लेयर जे तुमकां स्क्रिनीचेर जेन्ना दिल्ली मॅचीस चलता, राजस्थान मुंबय मॅचीस चलता, कलकत्ता मॅचीस चलता, बेंगलोर मॅचीस चलता, आमी लायव्ह पळयतात. पण आज गोंयकारांक ही संदी मेळिल्ली आसा, सांगेकारांक ही संदी मेळिल्ली आसा की तांकां हे सगळे स्टार्स आज सांगेच्या एसएजी ग्रावंडार जे आसा सगळे आयिल्ले आसात. तर दुसऱ्या इनिंग्स जी आसात ते सांगपाक कॉमेंट्री बॉक्सान मातसो बदलाव जातलो, चेंज जातलो आणि प्रसाद परब विथ सनी शेट्टी तुमकां जॉइन जातले सेकंड इनिंग्साक. आणि आमचे मानेस्त जे आसा एक एक करून हांगा माचयेर जे आसात पावतात आणि एन्जॉय करतात ही सेकंड सेमी फायनल्स. कारण गोंय राज्याचो एकमेव ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जो उरला तो सांगे वाठारांत उरला आणि सांगे प्रिमियर लीग दुसरी सेमी फायनल्स चालू आसा. तसेच सगळे जाण जे हांगासर जमलेले आसा तेंच्या खातीर एक बरी न्यूज आसा. आमी हावजी दवरलेली आसा हांगासर. सो कोणाक जर हावजी येवन हावजी हांगासर कलेक्ट करपाचें आनी लक ट्राय करपाचो आसा जाल्यार बेगितल्या बेगीन हावजी कलेक्ट करपाक येवपाचें. रिक्वेस्ट करता जे प्रेक्षक हांगासर जमिल्ले आसा सगळ्या लागीं की तुमकां जर तुमचो लक ट्राय करपाचो आसा जाल्यार तुमी कॉमेंट्री बॉक्सा मुखार येवचें आनी हांगासर हावजी आमी दवरलेले आसात. सो ते हावजी घेवपाचे आनी तुमी तुमचो लक ट्राय करूं शकतात. त्याचबरोबर आम्ही लॉटरी तिकीट सुद्धा दवरलेली आसात. त्याची प्राइस जावन आसा फक्त आणि फक्त 200 रुपया. आणि जर तुमकां लॉटरीचे कुपन लागता आणि तुम्ही विनर जाता जाल्यार तुमकां मेळटले 2 लाख रुपये. सामकी भरघोस ही इनाम दवरलेली आसात. फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपये, तशें सेकंड 1 लाख रुपये, मागीर तिसरें इनाम 75,000, चौथें इनाम 50,000 आणि तशेंच पांचवें इनाम 25,000. तशेंच भरघोस हांगासर प्राइजीस दवरलेली आसात. लॉटरी कुपन जर तुमकां घेवपाचें आसा जाल्यार कमेंट्री बॉक्सान येवचें आणि फक्त 200 रुपया हे लॉटरी कुपनची रेट जावन आसा. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश काकड़कर और
प्रदीप देउलकर। दोनों भी मैच में, दोनों भी सेमीफाइनल के मुकाबले अगर देखा जाए तो लो स्कोरिंग मैच, क्योंकि दोनों भी टीमों ने अगर देखा जाए, सनी तो पहले गेंदबाज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद, और जो निर्णय लिया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उतनी बल्लेबाजी हुई नहीं। और खास करके गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा, दोनों भी मैचों में गेंदबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजों को रोक के रखा था। हरीश काकोडकर ने एक बात का जिक्र किया कि पहले मैच में हमने देखा था, पहले इनिंग में विकेट गिरते गए राजस्थान के, और वहां पे उनको संभलने का बिल्कुल भी मौका दिया नहीं आरजे ग्रुप देवट टीम ने। यहाँ पे उनके विकेट काफी बचे हुए थे, लेकिन बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने बिल्कुल मौका नहीं दिया। लेग कटर बॉल, ऑफ कटर बॉल, नीचे रहती हुई गेंद, और वहां से जब आप बल्लेबाजी करने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे थे तो पूरी तरह से दबाव में दिखे वहां पे, और वहां पे रन बने नहीं। मैच बने 32 रन, और 33 रनों का लक्ष्य रहेगा मैच को जीतने के लिए। 33 रनों का लक्ष्य रहेगा मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पे जो बल्लेबाजी हमने पहले दिन में आखिरी मैच में देखी थी सनी, आपको याद दिलाऊं, 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। अंकुर जैसे टीम के कप्तान वहां पे मौजूद थे, काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी, और उनके सामने जिस तरह से 58 रनों का पीछा किया था, वो सेंसिबल बैटिंग जिस तरह से की थी, उस बल्लेबाजी की अब यहाँ पे जरूरत है। उनको पता है कि विकेट के ऊपर काफी नमी है, और नमी पे गेंद सीधे से बल्ले पे आ नहीं रही है, और ऐसे मुकाम पे आपको बल्ला नीचे रखते हुए इस गेंद को अगर इस रनों को अगर चेस करना है तो सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा, और संभल के आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 36 गेंदे हैं और आपको बनाने हैं 33 रन। आपकी राय क्या कहती है? बहुत ही बढ़िया सर। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है कि बैटर विन यू मैचेस बट बॉलर विन यू टूर्नामेंट, यानी कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटक की टीम ने, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने परख लिया था इस पिच को, और इसके कारण सटीक लाइन और लेंथ से उन्होंने गेंदबाजी की, पूरी तरीके से बांध कर रखा था सभी बल्लेबाजों को, और वही बहुत ही बढ़िया प्लान एग्जीक्यूशन होता हुआ, और उसके बदौलत सिर्फ इनको लक्ष्य मिला है सिर्फ 33 रन। हमारे सभी विशर्स का थैंक यू। एवा फैमिली रेस्टोरेंट, संदीप नाइक, मारुति स्टील, किरोज कुमार, सपना स्टील एंड किचन गैलरी, सदाबार सी फूड फैमिली रेस्टोरेंट बार, एनवी स्काईनेट, संजीवनी मेडिकल स्टोर, साई गैस एजेंसी, सैयद महमूद कादरी, और संजय के रायकर, सत्यवान एस गावकर, काटियान परेरा, शेख इब्राहिम, सैयद हारून, साबी फर्नांडिस, शेख समरन, अनौश फर्नांडिस, संजय नाइक, और पहली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार शादाब। पहली गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई राउंड विकेट अटैक कर रहे हैं यहाँ पे राइट हैंडर बॉलर, और पहली गेंद के साथ कंट्रोल के साथ वो गेंद दिखी। लेफ्ट हैंडर बॉलर है, और लेफ्ट आर्म और द विकेट अटैक कर रहे शादाब। सामने है मुरली, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में शिवा। बैकफुट चले गए, जगह पर नहीं, कवर्स के ऊपर से खेल दिया है, और खिलाड़ी डीप में मौजूद है। 1 रन के साथ टीम का और खुद का खाता खोला वो मुरली ने। मुरली ने पहले 2 मैचों में कुछ खास आंकड़े नहीं थे उनके, लेकिन तीसरे मैच में जब जरूरत थी अपनी टीम के लिए और सामने एक बड़ी टीम थी, वहां पे एक सेंसिबल बैटिंग करके दी, और राजा के साथ अच्छी पार्टनरशिप करते हुए इस मैच को जीता था। शादाब फिर एक बार चले, फिर एक बार रुकते हुए गेंद को ग्रीप नहीं कर पा रहे। ग्रीप, रन अप, रिलीज और फॉलो थ्रू, ये 4 स्टेप्स होते हैं गेंदबाजी में, और पहले ही वहां पे स्टेप्स में थोड़े से अटकते हुए शादाब फिर एक बार हमसे दूर जाते हुए अगली गेंद के साथ। फुल लेन की गेंद थी, ऑन ड्राइव गेंद को किया है शिवा ने भी खाता खोला 1 रन के साथ। टीम की रन संख्या हो चुकी है 2 रन। ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी, पूरी तरह से दिमाग शांत रखते हुए बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ना होगा, लेकिन देखना होगा जहां पे 33 रनों का पीछा करना है और वहीं पे 33 रनों को बचाना होगा, वहां पे फील्डिंग टीम को राजू टाइगर, अरुणदा सावंतवाड़ी। शादाब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, ऑन ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, देखना होगा क्विक सिंगल लेने की कोशिश, दबाव बनाते हुए। सनी क्या कहना चाहोगे, दबाव जिस तरह से बनाना है वो फील्डर्स के ऊपर, वो काम करते हुए दोनों बल्लेबाज? जी हाँ, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट मैं कहूँगा। जानते हैं पावर प्ले का ये ओवर है, आप जोखिम नहीं उठाना चाहते, सिर्फ 33 रन की आवश्यकता है, सिंगल डबल भी अगर निकालेंगे तो काम आसान बन सकता है, और यही रणनीति होंगी इन दोनों बल्लेबाजों की। बहुत सही जिक्र किया, स्वाइप किया है बल्ले को, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, इनको कवर करेंगे तब तक और 1 रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। ओवर की पहली गेंद मात्र यहाँ पे डॉट थी, उसके बाद हर एक गेंद के ऊपर वहां पे स्कोर कर रहे, रन बना रहे, हर एक गेंद के ऊपर रन ले रहे। अब तक 5 गेंदें कर चुके पावर प्ले में और 4 रन बने हैं मुरली और शिवा के बल्ले से। आखिरी गेंद शेष, फ्लिक किया है गेंद को डीप स्क्वायर की दिशा में, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट,
स्टैंड एंड डिलीवर कजव का इस्तेमाल और गेंद बाउंड्री के बाहर ये मिलेंगे साउली क्रिएशन 4। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार के साथ उस शॉट को फ्लिक किया और गेंद गई ऑन साइड की दिशा में। उस शॉट को खेला गया, अंजाम दिया इस शॉट को, कलेव के सहारे गेंद को वहां पे कलेव का इस्तेमाल और फ्लिक के सहारे गेंद को एग्जीक्यूट करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर वैकेंट एरिया था, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, पावर प्ले का सही इस्तेमाल और ये मिला चौका पहला। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैं कहूंगा जो उनको मोमेंटम चाहिए था पहले ओवर में, पावर प्ले के ओवर में, वो उनको मिल चुका है। एक सही और सावधानिक शुरुआत भी मिल चुकी है। यहाँ से वही मोमेंटम आपको बरकरार रखना होगा इन आने वाले ओवर में। अगर आप वो मोमेंटम बरकरार रखेंगे इस सतह के ऊपर तो काम आसान जरूर बन पाएगा। गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए हैप्पी सहनेवाल, बार बार हम उसी टूर्नामेंट का जिक्र करते जो दिसंबर एंडिंग में बेंगलोर में हुई थी, इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग, और पूरे भारत भर से वहाँ पे श्रृंखला खेलने के लिए हर एक स्टेट से हर एक टीम आई थी और वही टीम के चैंपियन टीम के गेंदबाज है वो हैप्पी। पंजाब की टीम चैंपियन हुई थी वहाँ पे और पंजाब से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैप्पी। फील्डिंग की जमावट देख रहे हैं, वहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि खिलाड़ी कहाँ पे खेल सकते हैं। शिवा स्ट्राइक एंड पे, शिवा के लिए फील्डिंग देखते हैं, डीप मिड विकेट रखा है, उसके साथ सर्कल के अंदर दायरे के अंदर स्क्वायर लेग है, फाइन लेग रखा है, साई लोंगले वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ऑफ साइड में देखते हैं डीप स्वीपर कवर, वहाँ पे एक खिलाड़ी रखा है, कवर की दिशा में एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन की दिशा में खुद ओमी केणी, और एक गली में थोड़ा सा डीप खिलाड़ी रखा है हैप्पी सहनेवाल ने। रन संख्या 8, बिना कोई क्षति बिना कोई नुकसान। एक ओवर के बाद पारी का दूसरा ओवर, सामने वाले छोर से, दूर वाले छोर से हैप्पी सहनेवाल। पहली गेंद लेग कटर जड़ में डाली हुई थी, बिल्कुल जवाब नहीं शिवा की बाजी गेंद के ऊपर, और क्या गेंद निकल गई। लाजवाब गेंद आप देख सकते हैं रिप्ले के ऊपर पड़ने के बाद काटा बदली उस गेंद ने और इसके कारण बल्लेबाज जो संपर्क चाहिए था वो ठीक तरह से मिला नहीं। नतीजा यहाँ पर डॉट डिलीवरी स्कोर के खाते में। पहली गेंद के ऊपर शिवा को खामोश किया, एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। अगली गेंद के साथ फिर एक बार हैप्पी। चेक करने की कोशिश, और ये देखिए अंपायर के पास बिल्कुल भी देखा नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है ये दिखाते हुए शिवा सीधे निकल गए बाउंड्री लाइन की दिशा में, अपनी डगआउट की दिशा में, और यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ, कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट मिलता हुआ वहां पे हैप्पी को, और बल्लेबाज चलते बने वो शिवा, जेवीए ब्रदर्स विकेट। आप देख सकते हैं रिप्ले में पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी, लेकिन उसके बाद पीछे खींचा उस लेन को और गेंद पड़ी गुड लेन के ऊपर और कट करने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास असक्षम रहा और इसके कारण पवेलियन की राह यहां पर देखनी पड़ी। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ टीम क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका का। शिवा सचमुच तारीफ करना चाहूंगा ऐसे खिलाड़ियों की, काफी कम खिलाड़ी ऐसे होते जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते, स्पीडशिप दिखाते, और वहीं पे दिखाते हुए वहां पे शिवा बल्लेबाजी के लिए मिस्टर कंसिस्टेंस, ऐसे मैं कहूंगा राजा शालिग्रामा अर्थात राजेश पुजारी बल्लेबाजी के लिए आते हुए पहले दिन में तीनों के तीनों मैच में जलवा दिखाया था। और आज की अगर तारीख अगर देखा जाए, इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन है 25 अप्रैल, और अब तक अगर बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंचे नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे है, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन सांगेम प्रीमियर लीग में बनाए है, वो बल्लेबाज राजा शालिग्रामा। जी हाँ बिल्कुल सर, परिपक्व ये खिलाड़ी है और इनको परिपक्वता दिखानी पड़ेगी इस रन चेस में। 100 के ऊपर रन अब तक बने हैं राजा के बल्ले से। अगली गेंद के साथ हैप्पी, थोड़ा सा भी पीछे रुके थे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, जहां पे एरिया पूरी तरह से वैकेंट है, खाली है पूरी तरह से, और वहां पे खेलने की कोशिश थी। मैंने हैप्पी की बात की थी, हैप्पी आईएससीएल में पंजाब की टीम की तरफ से खेले थे और उस श्रृंखला बैंगलोर में ही हुई थी, और ये सभी खिलाड़ी बैंगलोर से बिलोंग करते, तो बैंगलोर में काफी सारे खिलाड़ियों ने वहां पे हैप्पी की गेंदबाजी देखी है और देखना होगा उसके ऊपर क्या जवाब देंगे सब ये कर्नाटक बैंगलोर के खिलाड़ी। राजा फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर, पहली गेंद वहां पे डॉट खेल चुके हैं, टीम की रन संख्या रुकी 8 रन के ऊपर पिछली 3 गेंदों में। अभी चले फिर एक बार दूर वाले छोर से आगे बढ़े थे, छकाया वहां पे। पहले मन बना लिया था कि आगे बढ़ के गेंद को ड्राइव करूंगा, लेकिन उसके बाद फुलने की गेंद और गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, और ये चौथी गेंद वहां पे डॉट होती हुई, दबाव बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। क्या लाजवाब गेंदबाजी, काबिल तारीफ है गेंदबाजी मैं कहूंगा इस सतह के ऊपर।
पहले ओवर में हमने देखा था कि बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब उस रन गति के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए इस ओवर में हैप्पी। चौथी गेंद वहां पे डॉट हैप्पी की। राजेश फिर एक बार सामने, शॉट को बनाया, वहां पे एग्जीक्यूट किया, चेस चालू है, देखना होगा कौन यहां पे रेस जीतेगा। गेंद वहां पे रुकने की कोशिश और साई लोंगले ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे दिखाई। अच्छा स्ट्रोक भी ऑफर किया, गैप में खेल दिया। बबल नाइक वहां पे थे, साई लोंगले, आकाश नेपाली उनके पीछे जरूर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन साहिल ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे की। 2 रन रोके अपनी टीम के लिए कि अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए, और 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 अंकों में 10 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद। 33 का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए 36 गेंदों में, और अब तक 11 गेंदें हो चुकी है, रन बने हैं 10 पूरी इनिंग में। हैप्पी आखिरी गेंद के साथ। बैकफुट चले गए, पंच किया गेंद को, खिलाड़ी है कवर पॉइंट की दिशा में, गेंद को कवर किया, जब तक क्विक सिंगल कंप्लीट करता हुआ राजा शालिग्रामा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 2 ओवर के बाद रन संख्या हो चुकी है 11, करंट रन रेट 5.5 का, यहाँ पे 11 रन बने हैं। 33 का लक्ष्य है, मतलब अभी भी चाहिए 22 रन मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में। किस तरह से आप मैच को देख रहे हो सनी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, अब तक सेंसिबल क्रिकेट खेला है क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटक टीम ने। जी हाँ सर, बिल्कुल। पहले ओवर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा पूरी तरह से बोलबाला रहा था क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका का, लेकिन उसके बाद राजू टाइगर्स अरविंद सावंतवाड़ी ने बहुत ही बढ़िया कमबैक किया उस दूसरे ओवर में। मैं कहूंगा थोड़े से मोमेंटम यहाँ पर खींचती हुई अपने और राजू टाइगर्स अरविंद सावंतवाड़ी की टीम, अगर आप यहाँ से बढ़िया फील्डिंग करेंगे, यहाँ से सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी करेंगे तो बात कुछ बन सकती है इस मुकाबले में। अगर आप लूज गेंदबाजी करेंगे तो बात बन सकती है क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के लिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज मौजूद है, मुरली और दूसरी तरफ राजेश। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, बहुत ही लाजवाब काबिले तारीफ ये बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस शैली के ऊपर, इस सतह के ऊपर आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, क्या रणनीति होगी, ये तो उनके दिमाग में बात है। ये बात देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के साथ एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को। कैलकुलेटेड रिस्क भी उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते। ये बड़ी गलती कर दी फरमान ने। इसके पहले भी पहले ही दिन हमने ये देखा था, ऐसे ही हुआ था एक टीम के साथ, और वही टीम है शायद काफिल, जी हाँ। सामने वाली टीम जो अब बल्लेबाजी कर रही है, उनके भी ऐसे ही गेंदबाज को वहां पे पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी रोकी गई थी। ये गलती आप नहीं कर सकते, इतनी बड़ी श्रृंखला और इतनी बड़ी गलती, वो भी प्रोफेशनल प्लेयर से। और फरमान जैसे गेंदबाज जो काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, और उनकी ओर से ही गलती होती हुई। अब यहाँ पे साहिल को मौका मिलेगा, फरमान को अब बिल्कुल भी हाथ में गेंद मिलेगी नहीं गेंदबाजी करने के लिए। ये बड़ा निर्णय यहाँ पे आता हुआ अंपायर का। जी हाँ बिल्कुल सर, इसे कहते हैं अटी। जी हाँ बिल्कुल सर, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, क्योंकि एक तो आपके पास रन बचाने के लिए थोड़े से कम है, और इस प्रकार की आप अगर गलती करेंगे तो इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। ये देखो कितने सोच में पड़ गए फरमान खान वहां पे, कितनी बड़ी गलती हुई उनसे, और अंपायर ने सही निर्णय लिया। ये इसी के लिए तो पहचानी जाती है सांगेम प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के अंपायर्स। वहां पे सुजीत राणे, राजू दाभोळकर, योगेश दाभोळकर, अभि तळेकर, कोई भी वहां पे कंट्रोवर्सी श्रृंखला में दिखाई नहीं दी हुई, इसका क्रेडिट पूरा जाता है वो अंपायर्स को, चारों अंपायर्स को। अब गेंदबाजी मोर्चे पे आएंगे साहिल लोंगले, करजत उमरोली, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। चलो चलो मैच को स्टार्ट करना है, ज्यादा वक्त न ले, फाइनल बाकी है इसके बाद। सांगेम प्रीमियर लीग श्रृंखला का आखिरी दिन, 5वां दिन, आखिरी रात सांगे गोवा में। और पहली गेंद के साथ साहिल लोंगले कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे तीसरे ओवर में। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 11 स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे सोच में पड़ गई है टीम, खुद फरमान टीम के कप्तान, कि किसको गेंद को अब वहां पे यूटिलाइज करेंगे उनकी जगह पे। 11 लॉस ऑफ 1, साहिल चले पहली गेंद के साथ।
सामने है मुरली, राजा शालिग्राम ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद बॉटमैन हल्के हाथ से बॉटमैन के सारे गेंद को खेल दिया, थोड़ा सा वाइडिश और दूसरे एंड के निकल पड़े। देखिए क्या हुआ वहां पे, हड़बड़ाहट, कॉम्बिनेशन वहां पे कम्युनिकेशन हुआ नहीं है और बल्लेबाज आउट। एक रन ही पूरा कर लिया था और वहां पे दूसरे रन की कोशिश थी, बिल्कुल भी रेडे नहीं थे वहां पे और बल्लेबाज आउट होते हुए बड़ा झटका लगता हुआ क्लियर के स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम को। आप देख सकते हैं रिप्ले के ऊपर किस प्रकार के साथ रन लेने की मंशा थी। पहला रन कंप्लीट किया था लेकिन उसके बाद कॉल, यहाँ पर कॉल ठीक तरह से सुनाई नहीं दी शायद, और आप देख सकते हैं किस प्रकार के साथ हाराखीरी मच गई और मुझे लगता है कि मुरली को लौटना होगा पवेलियन की ओर। जी हाँ बिल्कुल, क्या लाजवाब फील्डिंग मैं कहूंगा, खुदकुशी यहां पर की दोनों बल्लेबाजों ने और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पर मुरली को। जी हाँ, फ्रेम में क्लियर दिखता हुआ बल्लेबाज काफी दूर रह गए और गिल्लियां वहां पे बिखेर दी। मुरली को लौटना होगा। इट्स आउट, सेकेंड विकेट डाउन। जरूरत नहीं यहाँ पे गलती, वहां पे जल्दी करने की, जल्दबाजी करने की और वहां पे जल्दबाजी की। मुरली ने तीसरे मैच में अच्छा खेल किया था, वहां पे कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि खिलाड़ी के हाथ में गेंद थी। सरकार ने वहां पे गेंद को बहुत ही अच्छी की तरीके से कवर किया था और गेंद सीधे स्ट्राइक एंड के ऊपर, बल्लेबाज आउट होते हुए और नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर चौथे नंबर के ऊपर सागर भंडारी। देखिए आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, वो भी ऐसे सेमीफाइनल के मुकाबले में, क्योंकि हर एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया साझेदारी भी बन रही थी, लेकिन आखिरकार लौटना पड़ेगा मुरली को पवेलियन की ओर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर सागर हमें दिखाई देते हुए। देखना होगा सागर किस प्रकार के साथ बल्लेबाजी करेंगे इस सतह के ऊपर। सागर ऑन स्ट्राइक, 12 लॉस ऑफ 2, 33 का पीछा करना मैच को जीतने के लिए। 12 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। साइल फिर एक बार चले अगली गेंद के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़ दिया, विकेट कीपर वहां पे बीट हो गए और एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। गलती के ऊपर गलती, दोनों भी टीम एक एक गलती जरूर कर रहे, गलतियों के पीछे गलती। अंपायर ने सिग्नल किया वाइड बॉल, तो और एक रन मिल जाएगा टीम के खाते में। टीम की रन संख्या 14। थोड़ी दिशाहीन ये गेंद, मुझे लगता है कि वाइडी यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन उस प्रयास को परिवर्तित नहीं कर पाए साहिल। सागर और राजेश की जोड़ी फिलहाल के लिए मैदान के भीतर। साहिल फिर एक बार अगली गेंद के साथ राजेश के सामने। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, फुल की गेंद थी, चॉप करने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। थोड़े से लेट हो गए शॉट को खेलने के लिए, लेकिन जितना समय राजेश ग्राउंड के ऊपर लेंगे, जितना समय बिताएंगे, वो उतने ही परिपक्व हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे बल्लेबाज है राजा शालिग्रामा अर्थात राजेश पुजारी, जितना समय उनको मिलेगा वो उतने ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और चारों तरफ खेल सकते हैं, इतनी क्षमता इस बल्लेबाज में है। ओ ये देखिए पढ़ने की कोशिश, आगे बढ़े थे, उसके बाद वो आगे बढ़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने बैक लिफ्ट किया था, सामने खेलने की कोशिश की, जैसे देखा गेंद नीचे रहती हुई स्टीयर करने की कोशिश, ये देखिए एक्शन रिप्ले। कदम ताल किया था उन्होंने लेकिन उस कदम ताल में सक्षम नहीं रह पाए। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच है, शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन चूके वहां पर। 33 का लक्ष्य है, अभी भी रन बने हैं 14 स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया है, थोड़ा सा हवा में गेंद थी जरूर। खिलाड़ी है डीप में, मिड विकेट से आएंगे, गेंद को कवर करेंगे, तब तक राजेश ने कंप्लीट किया है। एक रन टीम की रन संख्या 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके हैं। साहिल उंगले ने इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, परेशान कर दिया बल्लेबाजों को, बड़े शॉट्स खेलने से दूर रखा है और अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश साहिल उंगले करते हुए। रन बने हैं 15 और अभी भी चाहिए 18 रन मैच को जीतने के लिए। वो चॉप किया है इनको, अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेल दिया, खिलाड़ी है वहां पे दूर में, जब तक वो गेंद को कवर से उठाएंगे और सागर ने बोल दिया जी हाँ 2 रन हो सकते हैं, दबाव बनाते हुए इस 2 रन के साथ। ये होता है कोऑर्डिनेशन, सही कॉल, इतना तेजी से कॉल जो सागर ने 2 रन हो सकते हैं और वहां पे राजेश ने उनका साथ दिया और 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए।
आप देख सकते हैं किस प्रकार के साथ बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पहले ही कॉल दिया था कि 2 रन लेने की मंशा होगी इस गेंद के ऊपर, और ये देखिए चीते की तरह वहां पर दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मुकम्मल किए इस गेंद के ऊपर। 2 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है 17 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। क्लियर क्लियर स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम, हरी टीम के ओनर भी और कैप्टन भी, और अच्छी बल्लेबाजी दो बल्लों के बीच में होती हुई। ऑन ड्राइव, जैसे गेंद थी जड़ में, उस गेंद को ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया, खिलाड़ी है डीप में, गेंद को कवर करेंगे, राजेश ने अब कॉल दिया, हो सकता है वहां पे रन। क्या बात है, सेंसिबल बैटिंग, फील्डर्स को डोमिनेट करने वाली बैटिंग, और फील्डर्स को चैलेंज कर रहे, 2 रन लेने के लिए फील्डर्स को चैलेंज कर रहे और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 19, 2 विकेटों का नुकसान। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गए 19 रन। क्या लाजवाब सेंसिबल क्रिकेट मैं कहूंगा दोनों बल्लेबाजों द्वारा। प्रेशर यहां पर डाल रहे फील्डिंग टीम के ऊपर और वो दबाव यहां पर साफ झलकता हुआ इस फील्डिंग टीम के खेमे के ऊपर। 33 रन का जवाब यहां पर देते हुए स्कोर पहुंच चुका है 19 के ऊपर, यानी कि और 14 रन की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। थोड़ा सा समय वहां पे ड्रिंक का होता हुआ। और सनी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ओवर के बाद रन संख्या हो चुकी है 19 रन, 2 विकेटों का नुकसान, और अभी भी 18 गेंदों में चाहिए 14 रन मैच को जीतने के लिए। क्या लगता है जहाँ पे सागर भंडारी ग्राउंड के अंदर आने के बाद राजा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और तीसरे विकेट के लिए अच्छी वहाँ पे पार्टनरशिप तो बन रही है और मैच की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। 18 बॉल और 14 चाहिए। देखिए दोनों बल्लेबाजों को यहाँ से रिदम मिल चुका है और ये रिदम यहाँ पर तोड़ने की यहाँ पर मंशा जरूर होगी गेंदबाजी करने वाली टीम की, लेकिन यहाँ पर उनको परिपक्वता दिखानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को, और सेट हो चुके हैं इस सतह के ऊपर। मुझे लगता है कि सिंगल डबल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। यही रणनीति उनको बरकरार रखनी पड़ेगी आने वाली इनिंग्स में, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर जोखिम लेना अनिवार्य नहीं है, बड़े शॉट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम टोटल है। आप अगर सिंगल डबल भी निकालेंगे तो आसानी के साथ इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही जिक्र किया आपने सनी। पिछले मतलब पहले दिन के आखिरी मुकाबले, मतलब ये टीम का पिछला मुकाबला था और आखिरी मुकाबले ये दो बल्लेबाजों ने मैच को जीताया था। यही 2 बल्लेबाज है ग्राउंड के अंदर, सागर भंडारी और राजा शालिग्रामा, जिनने मैच को एक सही ढंग से आगे बढ़ाते हुए 58 रनों का पीछा किया था वो अंकुर चे टीम के सामने। रन संख्या 19 रन, 2 विकेटों का नुकसान। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 14 रन। हैप्पी आते हुए फिर एक बार अपने दूसरे ओवर में फिर एक बार सामने वाले छोर से रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे और सामने रहेंगे वो राजा शालिग्रामा। 19 लॉस ऑफ 2, 3 ओवर्स टू गो एंड 14 रन्स टू विन। जीवित स्टंप्स के पीछे से फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते, सेट कर रहे, प्रयास कर रहे आने वाले 14 रनों को रोकने का। देखना होगा किस तरह से आप पेश आएंगे वो हैप्पी सहनेवाल। पहली गेंद इस ओवर की, बॉटम हैंड, क्या बात है, सेंसिबल क्रिकेट। गेंद को आने दिया, उसके बाद बल्ले का मुंह खोला, गेंद को थोड़ा सा पिच खेलते हुए मिड आउट की दिशा में, और वहां से एक रन चुरा लिया। यही अब रणनीति होंगी इनकी। मुझे लगता है कि राजू टाइगर्स सरौंदा सावंतवाड़ी टीम को अटैकिंग फील्ड लगानी पड़ेगी, क्योंकि मंशा अब साफ दिखाई दे रही है दोनों बल्लेबाजों की। अगर आप अटैकिंग फील्ड रखेंगे, थोड़ा सा दबाव बनाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर, तो आपके लिए बात बन सकती है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे इस मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल, कोई संदेह नहीं। जब 2 खिलाड़ी सामने क्लोज रखे, अभी उनके गैप में से गेंद को निकालना होगा। सामने अब है सागर भंडारी, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, गलती की है वहां पे। बल्ले का भारी सिरा, मोटा सिरा, और विकेट कीपर का सहारा, जेवीए ब्रदर्स विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन चूके वहां पर एज लगी, बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, जोखिम यहां पर उठाने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास को परिवर्तित नहीं कर पाए। अगर आप इस गेंद के ऊपर भी सिंगल निकालते, स्ट्राइक रोटेट करते, तो मंशा कुछ और होती, रणनीति कुछ और होती, लेकिन यहां पर विकेट अपना गंवाना पड़ रहा है। क्या बात है, जिस तरह से हमने टॉस के दरमियान बातचीत की थी कि आज इस टीम में कौन सा खिलाड़ी शरीक होने वाला है या कुछ चेंजेस हुए, तो ये वो चेंजेस है, ये वो नाम है आते हुए गोवा के लोकल प्लेयर साई जोरे। बल्लेबाजी के लिए जरूरत है साई जोरे, जो काफी फ्लेक्सिबल भी है और विकेटों के बीच में काफी तेज भी है। अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए वो राजा शालिग्रामा के साथ 5वें पायदान के ऊपर 20 रन बने, स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी चाहिए 13।
गेंदों की अगर मैं बात करूं तो विराज मुझे बताएंगे अब तक इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। साइश जोरे आते हुए बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस खिलाड़ी का चयन आज के दिन में किया इस टीम में, कर्नाटका की टीम ने, क्लियर के स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका। ट्रैक चेंज किया है हैप्पी ने, अब राउंड विकेट अटैक करेंगे दूर वाले छोर से। ओ उछालता, मैग्निफिसेंट डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर गिरने के बाद जो अनएक्सपेक्टेड इवन बाउंस आप देख रहे हैं, वहां पे सरप्राइज करती हुई गेंद साइज जोरे को सीधे विकेट कीपर के पास। बहुत ही बढ़िया स्वागत किया यहाँ पर साइज जोरे का। ये देखिए पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ अनइवन बाउंस, चकित हुए इस गेंद के ऊपर। निम्नलिखित जैसा ये प्रश्न था और इसका जवाब ढूंढते रह गए साइज जोरे। ये और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों भी टीम के लिए, यहां से रन बनाने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहां से विकेट निकालना भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो राजू टाइगर अरुण दास सावंतवाड़ी टीम को। फॉलिंग स्विंग मारने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के ऊपर, उसके बाद थोड़ी सी ओवर पिच, उसको पढ़ नहीं पाए और उसके बाद और एक डॉट आता हुआ इस ओवर में। पहले से ही परेशान करके रख दिया हैप्पी सेनेवाल ने पहले ओवर के साथ। पहले ओवर में महज 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटका था। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें कर चुके, महज 1 रन और 1 विकेट भी चटका चुके हैं। साइज जोरे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए होते ग्राउंड के अंदर। राउंड विकेट, फिर एक बार हैप्पी और एक चॉप करने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद, पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई गेंद बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में, जीवित के पास। बैक टू बैक 2 गेंद, 3 गेंदें बिंदी कर चुके हैं। अब यहां पे लक्ष्य की अगर बात करें तो अभी भी 13 चाहिए। अब आने वाली 13 गेंदों में रन अ बॉल इक्वेशन, 13 गेंदें और 13 रन। क्या ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, उसकी पूरी तरह से कोशिश जारी है राजू टाइगर अरुंदा सावंतवाड़ी टीम की। हैप्पी सेनेवाल फिर एक बार तैयार आखिरी गेंद के साथ। ओ लेग कटर बॉल, जब साइज जोरे सामने आए, चारों गेंदों में चारों अलग अलग वेरिएशन था। कभी फुल एंड डाला, गुड लेन के ऊपर डाला, उसके बाद आपने देखा कि यॉक कर दिया और उसके बाद ये देखिए लेग कटर बॉल, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेन से आगे गेंद बाहर निकलती हुई और 4 ओवर के बाद रन संख्या 20 के ऊपर रुकी है। महज 1 रन का ओवर, 2 रन का कोटा पूरा किया, महज 4 रन और 2 विकेट। काफी बेहतरीन वहां पे परफॉर्मेंस और ये देखिए गेंदबाजी वो हैप्पी सेनेवाल की। क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या काबिले तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर हैप्पी द्वारा। चारों खाने चित, साइज जोरे के पास कोई जवाब नहीं था इन गेंदों का। अब बहुत ही मैच एकदम रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। बची है 12 गेंदे और 12 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। आसान दिख रहा है इक्वेशन, लेकिन उस काम को आसान बनाने नहीं देंगे। ये देखिए पिछला ओवर, क्या लाजवाब ओवर। पहले ओवर में क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, गुडलैंड के ऊपर हिट किया था और ये विकेट, सागर का विकेट। उसके बाद साइज जोरे, ये देखिए लाजवाब गेंदबाजी, अनइवन बाउंस मिला, पिच से भी ज्यादा मदद मिली हैप्पी को। तेज तरार गेंद, सेटिंग लाइन और लेन से, ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की हैप्पी ने। और अब इक्वेशन आ पहुंचा है 12 गेंदे और 13 रन। स्कोर पहुंच चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राजेश और साइज जोरे मैदान के भीतर फिलहाल के लिए। अंपायर सुजीत।
अमित पांडे गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए, अपील अंपायर के पास, रिवर्स खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पाया इस गेंद के ऊपर, और वहां पे अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाई का। एक रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिला के 21 रन हो चुके हैं। इंपैक्ट किया गया है वहां पे अमित पांडे को। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। साइज जोरे फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर 4 डॉट गेंदे वो खेल चुके हैं। देखना होगा इन आने वाली गेंदों के ऊपर क्या मंशा होगी उनकी। बंटी बद्रे की जगह वहां पे अमित पांडे को बुलाया गया है ग्राउंड के अंदर इंपैक्ट के रूप में। 21 रन बने, अभी भी 11 गेंदे शेष है और चाहिए 12 रन मैच को जीतने के लिए। चलो मैच शुरू कीजिए। फील्डिंग टीम वहां पे अभी भी फील्ड सेट करती हुई, डीप में फाइन लेके रखा है जो जाए के अंदर है, डीप स्क्वायर ले गए, डीप मिड विकेट है, और लॉन्ग ऑन में थोड़े से वाइडिश खड़े संस्कार, और एक अब डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा है साइश के लिए, और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। बाकी सब खिलाड़ी दायरे के अंदर। अमित पांडे लेफ्ट आर्म अब ओवर द विकेट, सामने खिलाया, उठाया गेंद को, हवा में गेंद, संस्कारी गेंद के नीचे, और आसान सा कैच। गैप में खेलने की कोशिश थी लेकिन उस गैप को ढूंढ नहीं पाए, और एक बड़ा झटका लगता हुआ काफी उम्मीदों के साथ साइज जोरे को ग्राउंड के अंदर भेजा था। लोकल बॉय है, हलीवादी जानते इस विकेट को, लेकिन वो दमखम नहीं दिखा पाए और यहां पे गिरता हुआ जेवीए ब्रदर्स विकेट। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार के साथ वो शॉट एग्जीक्यूट करने का प्रयास था। थोड़ा सा मैं कहूंगा एलिवेशन नहीं मिला इस शॉट के ऊपर, और इसके कारण सीधा गई फील्डर के हाथों में। संस्कार वहां पर मौजूद थे, और दबाव में अक्सर बड़े खिलाड़ी भी बिखर जाते हैं, और वही साफ दिखाई देता हुआ साइज जोरे के चेहरे के ऊपर। क्या यहां से मैच में ट्विस्ट आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए, एक के ऊपर विकेट गिरते गए हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज पुरुषोत्तम, अब यहां पे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव बना चुके हैं गेंदबाज, इसमें कोई संदेह नहीं। अमित को मौका मिला है गेंदबाजी करने का। अमित पांडे जिन्होंने विकेट चटकाया, और यहाँ पे लक्ष्य थोड़ा सा कठिन होने की कोशिश वहां पे हो रही है गेंदबाजों द्वारा, हालांकि वो कठिन नहीं है। यहाँ से भी रन बन सकते हैं, अभी भी 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए आने वाली 10 गेंदों में। 10 बॉल एंड 12 रन टू विन। टेम्परामेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, संयम आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। संयम के साथ बल्लेबाजी तो करनी होगी और पार्टनरशिप भी करनी होगी, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ भी करना चाहूंगा। जिस तरह से अंडर प्रेशर गेंदबाजी कर रहे, विकेट चटका रहे, दबाव बना रहे बल्लेबाजों के ऊपर, सचमुच काबिल तारीफ। फिर एक बार अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट राइट हैंडर के सामने। सामने पुरुषोत्तम, फील्डिंग सेट करने के लिए काफी वक्त ले रहे हैं गेंदबाज। यहाँ पे अंदर बुला रहे, फिर एक बार बाहर निकाल रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी होती है खेल की। बॉटमैन का इस समय ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया है, खुद गेंदबाज जाते हुए गेंद को कवर करने के लिए, तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया, चुरा लिया 1 रन को। लॉस ऑफ टोटल 4। 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर राजेश पुजारी अर्थात राजा शालिग्रामा काफी दारोमदार रहेगा इस बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि जो भी करना है अब राजेश को करना है, राजेश को करना है, पुरुषोत्तम को करना है। फिर एक बार चले गेंदबाज अमित पांडे, स्टंप से छोड़ती हुई गेंद, वाइड का अंपायर का इशारा, और जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे हैप्पी, तब तक बल्लेबाजों ने और रन पूरा कर लिया। जी हाँ, अब तो बराबरी होती हुई यहाँ पर रन बॉल इक्वेशन के साथ फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। अब रन संख्या हो चुकी है को टोटल अगर देखा जाए तो मुझे बताते हुए विराट तेंदुलकर 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 9 रन अभी भी चाहिए अब मैच को जीतने के लिए, और 9 गेंदे ही शेष है। रन बॉल इक्वेशन फिर एक बार आता हुआ, 9 गेंदों में 9 रन। इस ओवर के बाद लॉटरी और उसे कैसे हाउसी की फिर एक बार अनाउंसमेंट होगी, तो ध्यान में रखिए क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, खास करके प्राइस के लिए हाउसी का प्राइस क्या रहेगा इस ओवर के बाद। 24 लॉस ऑफ 4। रन बॉल इक्वेशन, स्ट्राइक एंड पे पुरुषोत्तम, स्वीप करने की कोशिश, सबके सामने भाग गए वहां पे, और पुरुषोत्तम को वहां पे पकड़ लिया, पग बाद आउट हो गए। जेवीए ब्रदर्स विकेट, 5 विकेट डाउन फॉर क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका।
आप देख सकते हैं रिप्ले में थोड़ी सी सफल हुए थे, लेकिन सीधा विकेट के सामने पा गए। एलबीडब्ल्यू क्लियर कट यहाँ पर आउट। ये देखिए दबाव दबाव साफ झलकता हुआ मैदान के भीतर। एक समय के लिए लग रहा था कि शायद ये रन चेस आसान होगी, लेकिन उस आसान काम को कठिन बनाते हुए खुद यहां पर क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका की टीम। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मुनिंद्र आते हुए। अब 8 गेंदें शेष है, 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। मुनिंद्र को साथ देना होगा वो राजा का। पर 24 रन बने हैं, 9 गेंदों की अभी भी दरकार है। 33 रनों का पीछा करती हुई क्लियर कट स्ट्राइकर गोल्ड कर्नाटका टीम थोड़ी सी प्रेशर में आ चुकी है। 5 विकेट गिर चुके हैं उनके, और जिनके ऊपर खास करके भरोसा था वो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं इस टीम के। चले भाई, बल्लेबाज के रूप में जिस तरह से आए थे मुरली, एक गलती की वजह से उनको लौटना पड़ा, रन आउट हो गए वहां पे। उसके बाद शिवू कुछ खास नहीं कर पाए, और सागर भंडारी के ऊपर काफी भरोसा था टीम को, और वहां से वो भी कैच आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हैप्पी की गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मुनेंद्र। चलो गेंदबाज चलिए, एक मोमेंटम होता है, रिदम होता है, टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो आपको पता ही है, जैसे अंपायर ने जिस तरह से जिक्र किया है टॉस के दरमियान, कि अगर ज्यादा लेट करोगे तो आपका एक खिलाड़ी बाउंड्री से सीधा दायरे के अंदर आ जाएगा। सामने खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से, खिलाड़ी डीप में है मौजूद। गेंद को जब तक कवर करेंगे तब तक 1 रन पूरा होता। कॉन्फिडेंस के साथ इस शॉट को जरूर खेला है, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट होता हुआ टीम की रन संख्या हो चुकी है 25। अभी भी चाहिए 8 रन आने वाली 7 गेंदों में। 7 गेंदे 8 रन। सर मुझे लगता है कि ये गेंद बहुत कुछ तय करेगी इस मुकाबले में। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट आता है तो बहुत सारा फायदा होगा यहाँ पर राजू टाइगर्स अरंदा सावंतवाड़ी टीम को, लेकिन इस गेंद के ऊपर कहीं से भी बाउंड्री आती है तो बात बन सकती है क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के लिए। लेकिन अंपायर की निगाह भी वहां पे तेज है, जरूर वहां पे समय लगा के बैठे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 गेंदे और चाहिए 8 रन। फिर एक बार अमित पांडे अगली गेंद के साथ राजा के सामने। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी है वहां पे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, गेंद डाइवर्ट हो गई, दूसरे रन के निकल पड़े। ये देखिए मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ, 2 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए, और इसी के साथ 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या 27, और फिर एक बार रन बॉल इक्वेशन, 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। क्या लाजवाब ये मुकाबला। तसेच हांगासर लॉटरी दवरलेली आसा। लॉटरीची प्राइज जावन आसा 2 लाख रुपये। फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपये, तसेच सेकंड प्राइज जावन आसा 1 लाख रुपये, थर्ड प्राइज 75,000, फोर्थ प्राइज 50,000 आणि फिफ्थ प्राइज 25,000। आणि जर हे तुमकां लॉटरी घेवपाची आसा जाल्यार कॉमेंट्री बॉक्सा मुखार येवचें, आणि 200 रुपयांक एक लॉटरी तुमकां मेळटली। सो तुम्ही तुमचो लक हांगासर ट्राय करू शकता। लॉटरीचे पयली इनाम जावन आसा 2 लाख रुपये। तशेंच हांगासर जल्ती 5 सुद्धा दवरलेली आसा। जल्ती 5 ची प्राइज जावन आसा 25,000 रुपये। सो कोणाक हावजी हांगासर काडपाची आसा तेंच्यांनी देखून कॉमेंट्री बॉक्सा मुखार येवचें आणि हावजीचो आस्वाद घेवचो। अब यहाँ पे जिस तरह से अंपायर ने वहां से इशारा किया कि पेनल्टी लग चुकी है, अब एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आ जाएगा। मैच 4 खिलाड़ी रहेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर, काफी समय लिया है 5 ओवर कंप्लीट करने के लिए, 25 मिनट के ऊपर का ये समय। उसी कारण अंपायर ने यहाँ पे दंडित किया है गेंदबाजी करने वाली टीम को। विकी मुंबईकर के हाथ में गेंद मिली है, जिसका हमने जिक्र किया था कि एक गेंदबाज अगर यहाँ से ओवर नहीं डाल सकता, बैन हो सकता है, तो कौन से गेंदबाज का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये वो नाम है विकी मुंबईकर गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में, जो लेफ्ट आर्म बॉलर है। 6 गेंदों में चाहिए 6 रन मैच को जीतने के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर जो 2 रन बने उसमें मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। उनको पता है अब ये पार्ट टाइम बॉलर है गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए, और वहां से उनसे रन निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बल्लेबाजों को। स्ट्राइक एंड पे रहेंगे मुनेंद्र। पहली गेंद के ऊपर कॉन्फिडेंस आज खाता खोला था जरूर। चलो चलो फील्डिंग सेट कर लीजिए। आखिरी ओवर में 6 रनों की दरकार मैच को जीतने के लिए। संस्कार वहां पे अभी भी दबाव डालने की कोशिश, फील्डिंग सेट कर रहे।
पेनल्टी लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी और ज्यादा वक्त ले वहां पे, मैच को स्टार्ट कीजिए। राजू टाइगर, अरुण सावंतवाड़ी की टीम यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई, फील्डिंग में अभी भी वो तब्दीली चाहते। ये तो स्ट्रैटेजी होती है, एक बार खिलाड़ी को बाहर बुलाना, फिर एक बार अंदर भेजना, फिर एक बार बाहर बुलाना, ये तो होता ही रहता है। देखने की कोशिश किस तरह से कामयाब होगी या नाही। सुभाषजी खूप खूप धन्यवाद, आपण पुन्हा एकदा या, येणार पुन्हा या। सुभाषजी फळदेसाई आमचे स्थानिक आमदार। मी जेव्हा जेव्हा सुभाषजींना बघतो मी नेहमीच आवर्जून उल्लेख करतो की मुंबईचे आमदार बघा आम्हाला खूप मोठ्या ताफ्यात बघायला मिळतात। पहली गेंद, ओ लेग कटर बॉल बाहर निकली है और वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और तुरंत लिया है रिव्यू फील्डिंग टीम ने, गेंदबाजी करने वाली टीम ने। ये गेंद ऑफ स्टंप के जिस तरह से बाहर निकल गई, तुरंत बाहें फैला दी थी। अभी तड़ेकर ने इशारा किया था विराज को, लेकिन इस डिसीजन के ऊपर वो चैलेंज किया है अंपायर को वाइड के लिए। बहुत ही दिलचस्प होगा ये निर्णय, देखना होगा क्या होगी राय हमारे थर्ड अंपायर सर योगेश दाभोलकर की। बाहर निकलती हुई गेंद, लहराती हुई गेंद, तीसरे अंपायर के पास निर्णय भेज दिया है चेक करने के लिए। चलो फील्डिंग सेट कर लीजिए, अंपायर का निर्णय आएगा आपके पास, फील्डिंग सेट कर लीजिए, काफी वक्त दिया है इस मैच को। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ, बल्लेबाज ऑलरेडी सफल हो चुके थे, बाहर आए थे और गेंद सीधे निकल गई विकेट कीपर के दस्तान में। पहली गेंद वहां पे डॉट, बहुत ही बड़ा पल इस मुकाबले में, पहली गेंद पहली तौर के ऊपर यहाँ पर डॉट, यानी कि अब इक्वेशन बनता हुआ 5 गेंदे और 6 रन। बहुत ही दिलचस्प होगा किस प्रकार के साथ ये मुकाबला गुजर रहा है। 5 गेंदे और 6 रन। अगली गेंद के साथ फिर एक बार विकी मुंबईकर, हवा में गेंद को खेल दिया है, वैकेंट एरिया है और गेंद निकल जाएगी। जी आए, क्या शॉट लगा है, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर थ्रू द कवर्स, इनसाइड आउट, अपिश एंड पनिश, साउली गिरेशन, चौका। क्या बात है, क्या काबिले तारीफ ये शॉट, देख सकते हैं सफल होकर खेला इस शॉट को और ये हेलीकॉप्टर सा उड़ाया उन्होंने कुछ और गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की रीजन में 4 रनों के लिए। यहां से बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट होगा सर। जी हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए सनी तो फील्डिंग टीम ने थोड़ा सा वक्त जरूर लिया था, लेकिन उतना मौका मिला बल्लेबाज को कॉन्सेंट्रेशन के लिए और ये चौका आता हुआ उनके बल्ले से। अब 4 गेंदों में चाहिए 2 रन, इस चौके ने तो मोमेंटम बदल दिया। तेज तर्रार गेंद ये और राजेश चाहते स्ट्राइक उनके पास और यहाँ पे आउट होना पड़ेगा विकेट सैक्रिफाइस करते हुए। लेकिन उसके पहले मैच का मोमेंटम बल्लेबाज ने मुनिंद्र ने शिफ्ट किया अपनी टीम के लिए, लेकिन उनको खुद का विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है क्योंकि अब गेंदबाज हावी हो सकते हैं। ये भली बात राजा शालिग्राम जानते हैं, इसलिए खुद के पास स्ट्राइक रखा और नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आएंगे, लेकिन उसके पहले गिरता हुआ ये जेवीए ब्रदर्स विकेट। दो रन अभी भी चाहिए, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज मंजू आते हुए, मंजूनाथ। 3 गेंद में 2 रन चाहिए। सागर वही बात करते हुए मुनिंदर से कि आपको स्टीयर करना था, एक चौका आया था, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल लेना था, बड़े शॉट के लिए गए वहां पे। अभी भी 2 रन चाहिए, 3 गेंदों का खेल शेष है। हर पल दिल की धड़कनें तेज होने वाला ये मुकाबला, सब कुछ दाव पे लगा है दोनों टीम का। क्या यहाँ पे 2 रन बन पाएंगे? राजा शालिग्राम जो काफी कॉन्फिडेंट है ये पूरे श्रृंखला में, इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी हुई है उनकी। ओ इंप्रोवाइजेशन, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ पे कैच छूटा हुआ। दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये देखिए जीत लिया इस मौके को, जीत लिया इस मैच को, मौका बना दिया अपनी टीम के लिए। यहाँ पे छोटा टोटल जरूर था, लेकिन आखिरी क्षण तक वहां पे जो फाइट दी है सचमुच काबिले तारीफ। क्लियर के स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम दूसरी टीम बनी है सांगेम प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश करने वाली। कांग्रेचुलेशन टू हरी एंड कांग्रेचुलेशन टू टीम क्लियर के स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका। ऑफ कोर्स में से कोई संदेह नहीं, बड़े बड़े टीम को यहाँ पे
बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है इस टीम ने। इसके पहले जो पिछला मुकाबला, आखिरी मुकाबला जो पहले दिन में हुआ था, अंकुर सिंह जैसा बड़ा कप्तान उनके सामने था, बड़ी साइड उनके सामने थी, उनको वहां पे मात देते हुए 58 रनों का पीछा किया था। ये रन तो काफी मामूली थे, लेकिन बारिश के कारण आप देख रहे हैं कि वहां पे रन नहीं बन रहे, लेकिन आखिरकार वहां पे संयम के साथ और सावधानी के साथ इस मैच को अपने पक्ष में करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम ने। क्या बात है, जरूर इसका ध्यान जरूर गौरव ने